गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम लोग हमारे चैप्टर 17 की वर्कबुक करेंगे, तो सब अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए। यस मैम। और उसमें आज हम लोग करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस शीट फर्स्ट। तो फर्स्ट है हमारा आंसर इन वन वर्ड्स ओनली। द प्लैनेट दैट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट है जिसको हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं? मैम वो मार्स। राइट, मार्स। तो फर्स्ट का ए होगा मार्स। Second is the planet that is called a morning and evening star. Which planet is known as morning and evening star? Morning and evening star किस planet को बोलते हैं? नहीं पता? It's Venus. Second लिखिए Venus. Then third question is the planet with rings. The planet with rings. कौन सा planet है जिसके पास rings present हैं? Saturn. Right, Saturn. Third is Saturn. Then fourth is the constellation that looks like a hunter. कौन सा constellation है जो hunter की तरह appear होता है? मैम ओरियन। Right, Orion. Orion. Then next है the constellation that looks like the sword W. कौन सा constellation है जो the sword W की तरह appear होता है? मैम कैसोपोडिया। Cassiopeia. Cassiopeia. Then next है objects seen in the sky. अब जो objects हमें sky में appear होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मैम सेलेस्टियल। Right, celestial. सेलेस्टियल। Then next is celestial. तो ये था first answer in one words only. Complete हो गया? बताइए बच्चों, कंप्लीट हो गया आपका आंसर इन वन वर्ड्स? यस यस मैम। मैम। ओके। यस मैम। अब नेक्स्ट आता है हमारा fill in the blanks. All planets appear to move from dash to dash. सारे planets हमें किस डायरेक्शन में मूव करते हुए अपीयर होते हैं? मैम ईस्ट टू वेस्ट। बताइए। जो planets हैं वो मैम right, ईस्ट टू east to west. Right, Radhika. Then its answer is east to west. Then second है हमारा
Large number of rocks that lie between the orbit of Mars and Jupiter are called. कौन से रॉक्स हैं जो मैम जुपिटर एस्टेरॉइड और मार्स के ऑर्बिट, वो कौन से हैं? मैम एस्टेरॉइड्स Asteroids, right. The next dash comet appears after 75 years. बताइए कौन सा कॉमेट है जो 75 years के टाइम मैम ड्यूरेशन? हेस्ली, मैं हेस्ली। राइट, हेलेस कॉमेट. हेलेस कॉमेट. Then next question है, the pole star can be located with the help of the constellation. हम किस constellation के थ्रू pole star को locate कर सकते हैं? Ursa Major. मैम उर्सा मेजर। Right. Ursa Major. Then last है the hottest planet of the solar system is. अब हमारे solar system का hottest planet कौन सा है? मैम मर्क्यूरी Mercury, right. तो ये था आपका fill in the blanks. जिनका नहीं हुआ है जल्दी से करिए. हो गया सबका? Yes. नेक्स्ट आ जाओ, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग. तो फर्स्ट है हमारा स्टार्स एंड प्लैनेट. तो फर्स्ट लिखिए स्टार्स में. Stars are heavenly bodies. Stars are heavenly bodies that stars are heavenly bodies that are fixed in one place, that are fixed in one place and emit their own heat and light, and emit their own heat and light. तो ये है आपका स्टार्स के बारे में. Stars are heavenly bodies that are fixed in one place and emit their own light. हो गया ये आपका स्टार्स का? यस मैम सब लोगों ने स्टार्स का लिख लिया? Yes, ma'am.
ओके, अब इसी में ही नेक्स्ट लिखिए प्लैनेट। लिखिए planets do not have planets do not have planets planets do not have their own heat and light. Planets do not have their own heat and light, but shine because they reflect the sun's light. They revolve around the sun. They revolve around the sun in their fixed path called orbits. तो ये था आपका, मैम दिख नहीं रहा है। वेट अ सेकेंड, हाँ अब विजिबल हो रहा है। यस मैम। ओके, जल्दी से लिखिए। हो गया सबका प्लैनेट? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. अब नेक्स्ट आता है हमारा मेटेओर एंड मेटेओरॉइड्स। अब सेकेंड है हमारा मेटेओर्स एंड मेटेओरॉइड्स। तो सबसे पहले लिखिए मेटेओर्स में, meteors or shooting star, meteors or shooting stars are small object. Meteors and shooting star are small objects that enter the Earth's atmosphere, that enter the Earth's atmosphere at very high speed, at very high speed and get heated
due to friction and get heated due to friction with the atmosphere and glows and evaporates very quickly and glows and evaporate very quickly. It so meteor सबका complete हो गया? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट लिखिए इसमें मेटेरॉइड्स, हेडिंग डाल लीजिए मेटेरॉइड्स। अब मेटेरॉइड्स में लिखो some very large meteors, some very large meteors, some very large meteors that reach the earth before evaporates completely are called meteoroid. meteorite, meteoroid. तो ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन, मेटेओर एंड मेटेoroid. हो गया कंप्लीट सबका? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट आ जाइए थर्ड क्वेश्चन है आपका इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। अच्छा, कौन बताएगा कि इनर प्लैनेट हमारे कौन कौन से हैं और आउटर प्लैनेट हमारे कौन कौन से हैं? मैंने जब चैप्टर लोग पढ़ रहे थे तब बताया था। हाँ बताओ। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स इनर प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेन और नेपच्यून आउटर प्लैनेट। वेरी नाइस निखिल। तो हम इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे कि सबको पता है कि जो हमारा मार्स और जुपिटर है, इन दोनों के ऑर्बिट में एक बेल्ट प्रेजेंट है जिसको हम लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो वो जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है वो क्या करता है, इन प्लैनेट्स को सेपरेट करता है।
तो उस एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो अंदर वाले प्लैनेट्स हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये आ गए हमारे इनर प्लैनेट्स। और उस एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो आउटर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये हो गए हमारे आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, आउटर प्लैनेट। चलिए इसमें लिखिए, सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डालिए इनर प्लैनेट्स। The first four planets, the first four planets are called inner planets. They have very few moons. They have very few moons. और ये भी एक डिफरेंस है, जो इनर प्लैनेट्स हैं उनमें जो मून्स है वो बहुत ही कम है। मरकरी और वीनस के पास है नहीं, अर्थ के पास एक है, मार्स के पास भी एक है, और उसके बाद में जो हमारे आउटर प्लैनेट्स आते हैं उनमें जो नंबर ऑफ मून्स है वो क्या है, ज्यादा है। एंड सेकेंड हो गया, द लास्ट four planets are outer planets. The last four planets are called the outer planets. They have large number of moons. They have large number of moons. यह है आपका थर्ड क्वेश्चन। हो गया कंप्लीट? Yes, ma'am. ओके, हमारा नेक्स्ट आता है इक्विलेटरल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन। तो फोर्थ है हमारा इक्विलेटरल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन। तो सबसे पहले इक्विलेटरल प्लेन में लिखिए, द प्लेन with the equator, the plane with the equator of the earth, the plane with the equator of the earth is called equilateral plane, is called equilateral plane. Then next है हमारा orbital plane। इसमें लिखिए, the plane in which the plane in which the plane in which the earth revolves, the earth revolves, the earth revolves around the sun, the earth revolves around the sun is called orbital plane. It's called orbital plane.
ओके, ये है आपका इक्विलेटरल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन। हो गया सबका? Yes, ma'am. अब लास्ट आता है हम लोगों का नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कौन बताएगा इसको? नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? मैम नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का मैम अर्थ के जो मून्स रिवॉल्व करते हैं उसके अराउंड, और मैम आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैम जो कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज करे जाते हैं, जो मैम ह्यूमन के द्वारा बनाए गए। राइट, तो नेचुरल सैटेलाइट्स वो होती है जो क्या होती है? हेवनली बॉडीज होती हैं जो क्या करती हैं? प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होती हैं जो मैनमेड सैटेलाइट्स होती हैं। ठीक है, वेरी गुड आयास। देन नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नेचुरल सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो फर्स्ट नेचुरल सैटेलाइट में लिखिए natural satellite is a heavenly heavenly body that revolves around the planet. Then next है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इसमें लिखिए man-made satellites that are sent into space to revolve around the planets are called artificial satellites। तो ये है आपका प्रैक्टिस शीट फर्स्ट की एक्सरसाइजेस। सबका ये कंप्लीट हो गया प्रैक्टिस शीट फर्स्ट? Yes, ma'am. ओके, Yes, अब ma'am. उसके बाद में नेक्स्ट है गिवन बिलो आर पिक्चर्स सम ऑफ कॉन्स्टेलेशन राइट देयर नेम। यहाँ पे आप क्या करा गया है, कुछ कॉन्स्टेलेशंस के पिक्चर दिए गए हैं, आपको उनका नेम बताना है। ठीक है, एंड सेकंड पेज पे आपका ड्रॉ डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम, और आप सबको क्या करना है? सोलर सिस्टम का डायग्राम प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसको बुक में फिल कर लीजिएगा सब। और अपनी बुक में प्रैक्टिस शीट सेकंड को फिल करके रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास जब होगी हम लोग की तब हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे। ओके, Yes, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am.